देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान मियां शेर मोहम्मद सरगर। आज का प्रोग्राम मानावाला के नवाही गाँव बारा चंगड़ा में है, जहां एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 4 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़या ऐसे पेश आया कि गुज़िश्ता माह पहले थाना मानावाला में एक एफ़आईआर दर्ज हुई, जिसमें बताया गया कि कत्ल होने वाला जो मकतूल है, उसको अगवा कर लिया गया है। तो जब थाना मानावाला पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया, तो तफ्तीश के दौरान पता चला कि मकतूल को सियालकोट के नवाही इलाका एक नहर में जाकर कत्ल कर दिया गया है। हुआ कैसे पेश आया? मज़ीद हमारे साथ जो मकतूल की जो बीवी है और इस मुकदमे की मुद्दईया भी है नरगिस बीबी, इससे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे पेश आया। फोन आया है ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। बीबी का क्या नाम है जिसके साथ ਬੀਬੀ ਦਾ गया? ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲਾ ਰਾਣੀ। ਸ਼ਕੀਲਾ ਰਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਫਾਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫਾਕ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਗਈ? ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ? ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਗੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਬੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਫਾਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੇਟਾ ਆ। 4 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਰਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ नहीं। जी नाज़रीन, आपने मकतूला जो है मुकदमे की जो मुद्दईया है उनकी आपने बात सुनी है। तो मज़ीद बच्चों से उनके बात करते हैं कि इनका इस हवाला से क्या कहना है। ये दास्तान तो बहुत ही अफसोसनाक हुई है, तो मेरे पास भी ऐसे कोई लफ्ज़ नहीं जो मैं बयान कर सकूं। तो मज़ीद उन बच्चों से भी जानते हैं जिनका वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहा। फूल का मर्डर हुआ, उसका बेटा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बेटा बताओ क्या वाक़या पेश आया, कैसे? ਚਾਹੇ ਘਰੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗੋ ਕੇ ਖੜਿਆ ਨਹਿਰ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ आप मानती नहीं है, कहने मैं कल ही हूँ। साथ इस वक्त जो मकतूल है उसके कुछ और लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाला से क्या कहना है। माजी दसो की होया ते किस तरह वाकया पेश होया? ਵਾਕਿਆ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲਫ ਲਾਈ ਆ। ਕਲਫ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਤਾ ਆ। ਨਹਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਟ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਗਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੱਪਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ, ਨੱਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਗਈ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਸੱਦਿਆ ਵਾ, ਸੱਦ ਕੇ ਨੇ ਉਂਝ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਕਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। जो लवाहिकीन है बहुत गम से नडाल है, तो इनका ये मुतालबा है कि हमें जो हमारा जो लवाहिकीन जो कत्ल हुआ है इसकी डेड बॉडी चाहिए। इन्होंने पुलिस से और आला हुकाम से एक ही अपील कर रहे हैं बार बार, खुदारा हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हमारे जो बच्चा जो कत्ल हुआ है जो उसकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए। गांव के एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस वक़ूआ जो इनके गांव में पेश आया है, इस हवाले से क्या कहना है इनका। हाँ जी बुजुर्गो, दसो किवें वाक़या पेश होया है, किस तरह गवाह आया ते किस तरह वाकया जी किस तरह आया, पहले तो खवांदा पियांदा रहा रानी नूं, ठीक है बाद जो अपना अनबन हो गई है तो वो पैसे मंगते रहे, मैंने पैसे दे 4-5 लाख जरा है जेह्ड़े बाकी जरा खा पी लिया तो वो दिंदी नहीं। वकील ने अपना उस को भी सद लिया, उससे जाके उन्होंने गोलियां दे के की कीता पता नहीं हलाल करते की करता 3-4 लाख के बंदे मार के होना नहीं। मैं नहर सुटता कली सुट सकती है, इन्होंने फरार बनाया। अगों पुलिस जी भी मगर लगी है कि अज खो जाएगा तारा काम हो जाएगा, लारे दे जाते गल कोई नहीं होनी, पूरी चढ़ती नहीं करे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मेरे को डी सी अपील करने चाहिए, सारा लाश मिलनी चाहिए सानू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है लवाहिकीन का और जो गांव वालों का कहना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ का तराजू जो पुलिस को तोड़ना चाहिए और इनको मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। आगे मज़ीद और कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक और गांव वाला मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं। दसो किस तरह वाक़या पेश आया तुहाडे गांव दे विच, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आया है, इस हवाले नाल तुहाडा की कहना है? साडा ये कहना है कि ना बहुत गरीब है ने बेचारे, तो इन्हों का जानी कि मैं तो लाहौर में रहना वा, इतने हफ्ते बाद मैं आना, अतवार में इतने रेस्ट करना। इन्हों का कोई वावा 7-8 साल तो कोई 10 साल तो काम चलता पाया सी, तो ये जानी कि इन्हों की बेगम तो पता होंदा सारा। वो बेचारी आंदी कि इतने सानू फोन आया इनू, इन्हें कहा मैं चलना रक्षा लैन। ये ना रक्षा लैन चल गया, रक्षा लैन गया इत्थे तो तुहानू पता जरा बंदा उवें दा हुंदा वे जां औरत दे शिकंजे च आया हुंदा, ओह् नहीं सच बोलदा। उन्हें जाना किद्धर सी ते बोलिया किद्धर, उन्हें कहा मैं लाहौर जाना। इन्होंने कहा चलो हो सकदा कि लाहौर गया है। ये चल गया कोई 10-15 दिन, जानी कि मैनू भी मुंडे फोन करते रहे कि यार तेरे को तो नहीं आया। मैं कहा मेरे को तो नहीं आया यार, तो आंदे यार फाका नहीं लभदा पिया। असीं कहा क्यों, वजह की है, क्यों नहीं लभदा पिया। ये फिर बंदे ने तलाश करनी स्टार्ट की है, तो वो बेचारे भजे फिरदे रहे। इन्होंने अगवा का पर्चा 365 वो मन वाले करवाया 365। उस बाद इन्होंने लभना स्टार्ट किया, कोई हफ्ता कोई ठहर के पता चलिया कि बुढ़ी जी आप भी पेश हो गई है कि मैं मारिया। पुलिस भर के ले आई है या खुद पेश हुई है? पुलिस ने बुलाया उन्होंने। अच्छा, किस तरह पता चलिया पुलिस नूं, कोई तुसी कोई सबूत दिते रहे हैं, किस तरह पुलिस ने भरिया उन्होंने जाके? जानी कि उन्होंने बेगम को आए सी कि तुहानू किसी शक है गया। उन्हें कहा भी होर तो किसी शक नहीं है, ये उधर जाता रहा। जान के उन्होंने वाल मोबाइल रिकॉर्ड होया, जी ट्रेसिंग हुई है ना, उत्थों हुई है मोबाइल दी कालों तो कि यार यह मसला बनया है कि उन्होंने पुलिस वाले ने बुलाया उन्होंने, वो मान गई कि मैं मारिया। लेकिन मसला ये हैगा कि यह बुढ़ी का काम नहीं है, ये औरत कली का काम नहीं है। सारा जेन कहता कि औरत जी कली है ना वो काम नहीं कर सकती है। कि तुहाडा कहना है कली औरत नहीं, नाल कोई और भी शख्स मुलव्वस है? हाँ जी पुलिस ने जिहड़ी तफ्तीश कीती उहदे विच पुलिस दा की कहना है तुहाडे नाल, किस तरह दा तामन है? पुलिस ते मैं तो यही कहना कि जी पुलिस अगर तावन करना चाहिए ना, तो सिर्फ 3 दिन के हर काम कर सकती है। अगर पुलिस
सच्चे दिल नाल काम करे सिर्फ 3 दिन च हर चीज़ बरामद कर सकदी, लेकिन 1 महीना ते 10 दिन हो गए ने बचेरे गरीब डेड बॉडी नूं तरसदे पे ने। जो मकतूल अशफाक कत्ल हुआ है उनके लवाहिकीन और हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी दसो किस तरह वाकया पेश आया, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह इलम होया है कि भी मकतूल ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਗਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੱਭਦੇ ਲੁੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ 8-10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੱਸੇ ਹਾਂ। ਨੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। मेरे भनेवे का फोन आया है, उन्हें रक्षा वो भी निकल आया तो मैं भी चला हूँ लाहौरों रक्षा लैन चला हूँ। कौन कहता था कि भी फोन आया है और किसका फोन आया? अशफाक कहता साहब भी फोन आया है, किदा आया वा उन्होंने नहीं पता। उन्हें अपने भनेवे का नाम लिया, और पता ही कोई नहीं है। उन्होंने पूछा उन्होंने कोई पता नहीं। वो आंदा जी लाहौर चला मैं, लाहौरों अगों पता नहीं किधर नूं गया है किधर नूं नहीं गया। उत्थे अगे एक थाने मानावाला ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? हाँ जी थाने माना वाले गवाह जी ये दरखास्त कराई है, एफ.आई.आर कराई सारी। ਠੀਕ ਹੈ। ते उन्होंने वो भी काम करन दे, उधरों तुरे वो भी साढ़े नाल लगे फिरदे है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? पता चलिया जी कार्ड साढ़े को एक ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕੀਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬੁਖਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਉੱਗੋ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਉੱਗੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਘਰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾ ਗਏ 5 ਵਾ ਗਏ 3 ਵਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹਿਰੇ ਰੋੜਤਾ। ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ। 1 ਮਹੀਨਾ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਗਏ ਨੱਸ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਕੀਲਾ ਰਾਣੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮੁਲਾਸਫ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਆ। जी नाज़रीन, मकतूल के जो वर्षा उनकी बात सुनी है, उनका भी यही कहना है कि जो मरकज़ी मुलज़मा है उस पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर रही है। तो मज़ीद और गाँव वालों से बात करते हैं कि इस वक़ूअ के हवाले से इनका क्या कहना है। बुज़ुर्ग मौजूद है जो कि इसी गाँव में रहते हैं, तो इनसे बात करते हैं ये वक़ूअ कैसे पेश आया। बाबा जी किमें वक़ूअ पेश आया? ये इत्थे ना कि अपना ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੱਗੋਂ पता नहीं किधर ਨੂੰ ਗਿਆ, उधरों टेलीफोन आया। मुकम्मल ये दास्तान सुनी है। मकतूल जो शफाक कत्ल हुआ है उसकी बेगम से, उसके बच्चों से, कुछ गाँव वालों से मुकम्मल ये आपने हक़ाइक़ सुनी है, बातें सुनी हैं। तो इनका ये कहना है कि ये वाक़या ऐसे पेश आया है कि जो मोहम्मद शफाक है जो कत्ल हो गया है, रिश्ता माह पहले घर से गया है, उसको एक ख़तून की कॉल आई थी कि आप आएँ, तो घर ही ये बता के गया कि मैं लाहौर जा रहा हूँ रक्षा खरीदने के लिए। तो लेकिन लाहौर ना जा सका, कहीं और चला गया। और लवाहिकीन का ये भी कहना है कि जब हमने थाना मानावाला में एफ़.आई.आर दर्ज करवाई तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने अपने तफ्तीश शुरू कर दी। तो तफ्तीश में इनको पता चला कि जो मकतूल शफाक है सियालकोट के इलाका में चला गया है उस औरत ख़तून के साथ। तो उस ख़तून ने इसको नशावर गोलियाँ जो जूस में डालकर पिला दी और पिला के नहर में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत बाकी आ गई।
अभी तक मकतूल शफाक की जो डेड बॉडी पुलिस बरामद ना कर सकी। जो मरकज़ी मुलज़िम है उसको तो गिरफ़्तार कर दिया गया है। और मज़ीद आपको मैं एक और बताता चलूँ कि इस जो गाँव वालों का भी कहना है, मकतूल के वर्सा और ख़ासकर जो मदइया उसका कहना है कि ये अकेली खातून मुलव्वस नहीं इस केस में, और भी कुछ नामालूम शख्स मौजूद हैं। तो इन्होंने पुलिस से, डीपीओ शेखपुरा से, आईजी पंजाब से और मुतल्लका हकाम से यही अपील की है कि जल्द से जल्द जो और मुलज़मान हैं पुलिस इनको भी गिरफ़्तार करे और हमें इंसाफ मुहैया हो। तो आज का प्रोग्राम आपने नाज़रीन देखा है। अपने मेज़बान मियाँ शेर मोहम्मद ज़रगर को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।